میں کمانے کے لیے پردیس آیا تو یہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے جب اپنا ملک چھوڑا تو اس وقت میری عمر محض 18 سال تھی۔ میری آنکھوں میں کچھ بننے کا جنون تھا۔ پیچھے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت منع کیا تھا، مگر میں اپنے گھر کی غربت اور تنگ دستی سے بہت ہی پریشان تھا۔ ابا ایک معمولی چوکیدار تھے جو کسی بنگلے کے باہر چوکیداری کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اس کے بدلے انہیں مہینے کے آخر میں بہت ہی قلیل سی تنخواہ ملتی تھی، جس سے گھر کا گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ مہینے کے آخری دنوں میں یہ نوبت آ جاتی تھی کہ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ ایسے میں ابا اور اماں کی لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ اماں ابا پر اس بات کے لیے زور دیتی تھی کہ وہ یہ نوکری چھوڑ کر کوئی دوسری نوکری تلاش کرے، مگر ابا اماں کی بات نہیں مانتے تھے اور اماں سے بس یہی کہتے تھے کہ اس زمانے میں نوکری ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ بھی نوکری ملی ہوئی ہے تو اس بات کو غنیمت سمجھو۔ مگر جب اماں مجھے بھوکا سوتا ہوا دیکھتی تھی تو ان کا دل بہت دکھ جایا کرتا تھا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتے بیٹے کو بھوکا سوتا ہوا دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جبھی وہ ابا سے اصرار کرتی تھی کہ کوئی دوسری نوکری کر لیں تاکہ کم از کم وہ اپنے بچے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے، مگر ابا یہی سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی تو وہ نقصان میں چلے جائیں گے۔ جبھی وہ یہ نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور زمین پر بیٹھ کر پڑھا تھا، لیکن میں پھر بھی دل لگا کر پڑھا کرتا تھا۔ بچپن ہی سے غربت نے میرے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے پڑھنے لکھنے میں دل لگا لیا، کیونکہ اماں مجھے سے اکثر یہی کہتی کہ جب تم پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤ گے تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے اور ہم لوگ بھی پیٹ بھر کر اچھے اچھے کھانے کھا سکیں گے۔ اماں کی یہ بات سن کر میرا دل بری طرح دکھ جایا کرتا تھا۔ اماں سمجھتی تھی کہ میں ابھی بچہ ہوں، ان کی اس گہری بات تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے جب وہ غربت سے بے حد تنگ آ جاتی تھی تو مجھ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی، کیونکہ اماں کے دل کی بات سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ابا منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل جایا کرتے تھے اور پھر رات گئے ہی واپس آتے تھے، کبھی کبھی تو وہیں رک بھی جایا کرتے تھے۔ ایسے میں اماں بالکل اکیلی رہ جاتی۔ ایسے میں اماں نے مجھے اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا لیا تھا۔ اماں سارا سارا دن مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ یوں میں اور اماں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہو گئے۔ اماں اکثر مجھ سے کہتی کہ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم ایک بڑے آدمی بن جاؤ گے تو ہمارے غربت کے دن بھی ختم ہو جائیں گے اور میں بھی سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکوں گی۔ اماں کی باتیں سن کر میں خاموشی سے انہیں کی شکل دیکھتا رہتا، کیونکہ اماں کو کچھ بھی کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ مگر بچپن ہی سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اماں کے لیے بہت بڑا آدمی بننا ہے اور انہیں دنیا کا ہر سکھ دینا ہے۔ اسی وجہ سے میں بچپن میں ہی بہت سمجھدار ہو گیا تھا۔ میں اماں سے کبھی کوئی ایسی ضد نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے اماں کو ذرا بھی پریشانی اٹھانی پڑے۔ مجھے اماں کا احساس تھا، میں اپنی ماں سے شدید محبت کرتا تھا۔ اماں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر ان کی قسمت ایسی نکلی کہ انہیں شادی کے بعد غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے ان کا دل ہر وقت دکھی رہتا تھا۔ بھائیوں کی طرف سے بھی ان کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملا تھا اور نہ ہی اماں نے ان سے اپنی جائیداد مانگی تھی۔ اماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بھائیوں کا گھر میرے لیے کھلا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے، اس سے زیادہ کی مجھے خواہش نہیں۔ مگر جب اماں ماموں کے گھر سے ہو کر آتی تھی تو کافی دن تک خاموش ہی رہتی تھی۔ وہ وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر اپنے 2 کمرے کے کچے مکان میں آتی تو ان کا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ اماں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر ان کی خاموشی دیکھ کر میں سمجھ جایا کرتا تھا کہ اماں کو اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے ستا رہا ہے، کیونکہ ان کے بڑے بڑے محلوں میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی اور یہاں ہم لوگ مہینے کے آخری دن فاقے کر کے گزارتے تھے۔ اس بات سے اماں کا دل کٹ جاتا تھا، مگر جب ان کے بھائیوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ تو اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ اماں کو یوں خاموش دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر جایا کرتا تھا۔ میں نے ماموں کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں اماں کا دکھی چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ ابا پر ان سب باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اماں کو یہی سمجھاتے رہتے کہ اپنا دل چھوٹا مت کیا کرو، مگر اماں ابا کو گھور کر رہ جاتی تھی اور کبھی زیادہ غصہ آتا تو ابا سے لڑنے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایسے میں بالکل سہم کر رہ جاتا تھا۔ میں نے 10ویں کا امتحان دیا تو میرے گھر اچھے نمبر آئے تھے۔ یوں میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھنے لگا۔ اماں کا خواب تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے، جبکہ میں کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ میں نے انٹر بھی بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا
और फिर एक दिन मैंने अम्मा अब्बा को अपने इरादों से बाखबर कर दिया। मैंने अम्मा से कहा कि मैं अब मज़ीद तालीम हासिल नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि किसी दूसरे मुल्क जाकर कमाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा चंद लम्हों के लिए सदमे में चली गई थी। इन्हें मुझसे इस बात की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैं इनका इकलौता बेटा था, इसीलिए वो किसी सूरत भी मुझे अपनी नज़रों से दूर करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बात सुनते ही अम्मा ने रोना धोना शुरू कर दिया और मुझसे साफ कह दिया कि वो किसी भी सूरत कहीं जाने नहीं देंगी। मुझे पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। मैं कुछ वक्त के लिए अम्मा की नज़रों से दूर हो जाता तो अम्मा की जान पर जान बन आती थी। यहाँ तो मैं सालों लग गए थे अम्मा से दूर होने की बात कर रहा था। अम्मा ये सब कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। इसी वजह से अम्मा ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें यहाँ रहकर कुछ करना है तो करो, लेकिन यहाँ से जाने के बारे में हरगिज़ भी नहीं सोचना। मगर मैं तो पक्का इरादा बांधे बैठा था और यहाँ किसी सूरत नहीं रहना चाहता था। आखिरकार मैंने अम्मा को मना ही लिया और इनसे वादा किया कि वहाँ जाकर हर रोज़ इनसे फ़ोन पर बात करूँगा। अम्मा ने अपना सोने का जेवर बेचकर मेरे बाहर मुल्क जाने का बंदोबस्त किया था। इस वजह से मैं मज़ीद अम्मा का एहसानमंद हो गया था। कुछ अरसे बाद मैं बाहर मुल्क आ गया, मगर मैं रोज़ बाकायदगी से अम्मा से फ़ोन पर बात किया करता। अम्मा मुझे याद करके रोती रहती थी। शुरू के चंद दिन तो मुझे भी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मैं इस कदर सख्त मेहनत और मशक्क़त का आदी नहीं था। घर में अम्मा ने मुझे फूलों की तरह रखा हुआ था। मुझे कभी अपने कामों के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। जहाँ आकर तो मुझे अपने कपड़े भी खुद धोने पड़े थे और खाने का तो कुछ पता ही नहीं होता था। शुरू में जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। काफ़ी दिनों तक मैं सूखी ब्रेड पर गुजारा कर रहा था। ऐसे में मुझे अम्मा के हाथ की गरम गरम रोटी बेहद याद आती थी। मुझे नहीं याद अम्मा ने कभी मुझे भूखे पेट सोने दिया था। भले महीने के आखिर में अम्मा अब्बा का हाथ तंग हो जाया करता था। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था, मगर फिर भी अम्मा मेरा पेट भर कर ही मुझे खिलाती थी। ऐसे में यहाँ आकर बिल्कुल ही टूट गया था। अक्सर तो अम्मा को याद करके मेरी आंखों से आंसू निकल आया करते थे, मगर यहाँ तो मेरे आंसू पूंछने वाला भी कोई नहीं था। अगर अम्मा मुझे ऐसे रोते देख लेती तो जाने इनके दिल पर क्या गुजरती। मैं खुद ही अपने आंसू पूंछकर अम्मा को फ़ोन करके इनके ढेरों बातें कर लिया करता था। मगर फिर जाने कैसे अम्मा पहचान जाया करती थी कि मैं भूखा हूँ और मुझसे कुछ नहीं खाया। मैं बड़ी मुश्किल से अम्मा को ये इत्मीनान दिलाता कि मैंने अभी अभी खूब सैर होकर तरह तरह के खाने खाए हैं और अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। पता नहीं अम्मा जो इस बात पर यकीन होता था या नहीं, मगर वो कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाया करती थी। यहाँ तक कि खामोशी का इतना तवील हो जाता था कि मुझे खुद ही इन्हें मुखातब करना पड़ता था। मगर दूसरी जानब से मुझे अम्मा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी। वो मुझे बस यही कहती थी कि वापस लौट आओ, इस अजनबी मुल्क में कुछ नहीं रखा, तुम बस मेरे पास आ जाओ ताकि मेरी आंखों को ठंडक मिल सके। अम्मा ही इस बात पर मैं इन्हें तसल्ली देता था कि मैं जल्द वापस लौटकर आपके पास आ जाऊंगा। मैं इन्हें साफ लफ्ज़ों में ये नहीं, इतनी जल्दी लौट कर नहीं आ सकता, बस मैं इन्हें तसल्ली ही दे सकता था। अब्बा और अम्मा मेरे जाने के बाद बहुत ही तनहा रह गए थे। अम्मा तो रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी, मगर अब्बा मेरे जाने के बाद बहुत ही खामोश हो गए थे। वो मुझसे फ़ोन पर बात करते तो मुझे हौसला देते। वो ये बात बखूबी जानते थे कि परदेश में कमाना कितना मुश्किल है, मगर मुझे अब्बा की आवाज़ भी भीगी हुई लगती थी। अब्बा ने अपनी पूरी ज़िंदगी सख्त मेहनत से गुजारी थी। मैंने इन्हें पूरी पूरी रात अपने काम पर मौजूद जागते हुए देखा था, मगर फिर भी इनके माथे पर कोई शकन नहीं आती थी। अम्मा इनसे बहुत लड़ती, हर रोज़ लड़ा करती थी, मगर अब्बा ने कभी भी अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। वो थोड़े पर भी खुश रहने वाले इंसान थे। मैंने कभी भी अब्बा को ज़्यादा की हवस के लिए परेशान होते हुए नहीं देखा था। मैंने अब्बा को हमेशा ही शाकर देखा था, मगर अब्बा मेरा हौसला बने हुए थे। वो मुझे तसल्ली देते कि ये सब कुछ थोड़े वक्त की परेशानी है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओगे। इसके बाद तुम्हें ये परेशानियां बहुत ही छोटी छोटी सी मालूम होंगी। मैंने परदेश में काफ़ी अरसे तक छोटी मोटी नौकरियां करके गुजारा किया। मैंने सुना था कि परदेश में नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। मुझे नौकरी ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी थी। मैं सुबह के वक्त लोगों की गाड़ियां साफ़ करने का काम करता था और शाम में एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। इस तरह से मेरे पेट भरने का तो आसरा हो गया था, मगर मैं अपनी इस नौकरी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जहाँ मेरे पेट भरने का तो आसरा हो गया था, मगर मैं अभी भी घर पैसे नहीं भेज पा रहा था। ऐसे में मैं बहुत ही परेशान हो गया था।
आखिरकार काफ़ी अरसे की मेहनत और कोशिशों के बाद मुझे एक नौकरी मिल ही गई। इस तरह से मैं इस काबिल हो गया कि चंद पैसे अपने घर भेजने लगा था। जिस वक्त मैंने अम्मा को पैसे भेजे थे, इस दिन अम्मा बेहद खुश थी। मैं जब अम्मा से फ़ोन पर बात कर रहा था, इस वक्त भी खुशी अम्मा की आवाज़ से झलक रही थी। अम्मा ने मुझे ढेरों दुआएं दे डाली थी। अम्मा को यूं खुश देखकर मुझे बेहद सुकून मिला था। ऐसा लग रहा था कि मैं अब अम्मा के ख्वाब पूरे करने के काबिल हो गया हूँ। मगर मैं अभी भी अपनी इस मंजिल से काफ़ी दूर था जिसका मैंने सोचा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अपनी ज़िंदगी में सेटल होता जा रहा था और मेरे घर के हालात भी अच्छे होते जा रहे थे। अब्बा और अम्मा बहुत खुश थे, मगर अम्मा मुझे याद करके हर वक्त उदास रहती थी। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि अब्बा अम्मा को संभाल लेते थे। इसी वजह से मैं बेफिक्र था, लेकिन मैं भी रोज़ दिन में 2 बार फ़ोन करके अम्मा की खैर खैरियत मालूम कर लिया करता था। मुझे इन लोगों पर हैरत होती थी जो बाहर मुल्क जाकर अपने घर वालों को भूल जाया करते थे और इन्हें यकसर अंदाज कर दिया करते थे। मगर मैं अपने माँ बाप की जानब से बिल्कुल भी गाफिल नहीं हुआ था। मुझे परदेश में 3 साल गुजर चुके थे। मेरे घर के हालात बहुत बेहतर हो चुके थे और मेरी नौकरी भी पक्की हो गई थी। ऐसे में मेरी ज़िंदगी में बेहद सुकून आ गया था, मगर ये सुकून ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रह सका। एक दिन जब मैं काम पर मौजूद था तो किसी नंबर से मुझे कॉल वसूल हुई। वो पाकिस्तान से मेरे किसी रिश्तेदार का फ़ोन था। मैंने बेध्यानी में उठाकर कान से लगा लिया, क्योंकि मैं इस वक्त काम में बहुत मसरूफ़ था। मगर दूसरी जानब से जिस खबर ने मुझे सुनने को मिली, इस खबर ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा था। मैं इस वक्त अपने होशो हवास खो बैठा था। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब नुकसान की भरपाई सारी ज़िंदगी नहीं हो सकती। मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मेरे अब्बा इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। अभी तो हमारे अच्छे दिन शुरू हुए थे और अब्बा मुझे छोड़कर चले गए। अगले ही पल मुझे अम्मा का ख्याल आया। मैं इस वक्त इनके पास मौजूद नहीं था। मुझे इनके पास होना चाहिए था, मगर जहाँ से इतनी दूर वापस अपने मुल्क में लौटना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। सबसे पहले मुझे छुट्टी के लिए दरख्वास्त देनी थी। जब होश ठिकाने आए तो मैं जाने के बारे में सोचने लगा, मगर यकदम ही मैंने खुद को बहुत ही तन्हा महसूस किया था। मेरे अब्बा मेरे पास नहीं थे, मगर इनका सहारा ही काफ़ी था, और अब तो वो भी मुझे छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में मैं बिल्कुल ही टूट के बिखर गया था। मैंने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी तो वो मंजूर कर ली गई, क्योंकि इतने सालों से मैं एक बार भी लौटकर अपने घर नहीं गया था। मैंने जल्दी जल्दी अपनी सारी तैयारी की और अपने घर जाने को तैयार हो गया। मैं 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। मैं इस हादसे से पहले हर वक्त सोचा करता था कि मैं जल्द ही छुट्टी लेकर अपने माँ बाप से मिलने जाऊँगा और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। मगर मैं नहीं जानता था कि मुझे इस तरह से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं जहाज़ में भी बैठकर मुसलसल अपने आंसू साफ करता रहा था। मैं नहीं जानता था कि लोगों से आंसू छुपाना इतना मुश्किल होता है। आज मुझे परदेश की हकीकत समझ आ रही थी, क्योंकि लोग परदेश जाकर इतने बेबस हो जाते हैं। मेरे घर से सब मुसलसल फ़ोन आ रहे थे। अब्बा को दफनाने में जल्दी करनी है और मैं बस यही कह रहा था कि मेरा थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। मेरे पहुंचते ही दफना दीजिएगा, ये कहते हुए मेरा दिल फट रहा था, मगर इस वक्त मुझे खुद को संभालना था। मैं जो कमज़ोर हरगिज़ नहीं पड़ना चाहता था। एयरपोर्ट पर उतरकर जब मैंने अपने वतन की मिट्टी को छुआ तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और मेरा दिल किया कि मैं यहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगूं और एक ही बात अपने दिल का सारा गुबार निकाल दूं। मैं वहां से टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी वाले को अपने घर का पता समझा दिया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अपने बाप की मैयत को देखने की हिम्मत अपने अंदर जमा कर रहा था। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरे अंदर का बच्चा ये बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे मेरे अब्बा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं नहीं रोया तो मेरा दिल फट जाएगा। मैं जैसे तैसे ही अपने घर पहुंचा तो अब्बा की मैयत कमरे में रखी थी, जबकि सहन में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। मुझे देखकर सब लोग मुझे गले लगाने लगे और तसल्लियाँ देने लगे, मगर मेरी नज़रें अपनी माँ की तलाश में थीं। मुझे इस वक्त बस इनकी फ़िक्र थी। मैं यही सोच सोच कर हलकान हुए जा रहा था कि जाने इस वक्त इन पर क्या गुजर रही होगी। मैं सबसे मिलते मिलाते अंदर कमरे में गया तो मेरे पैरों से जैसे जान ख़त्म हो गई। मेरे आंखों के सामने मेरे बाप की मैयत रखी थी और मेरी माँ के सर पर सफ़ेद चादर उड़ा दी गई थी। अम्मा मुसलसल रोई जा रही थी। मैं तड़प कर इनकी जानब बढ़ा। मुझे देखते ही अम्मा ने चीख मारी और मेरे गले लगकर बेतहाशा रोने लगी।
रोते रोते वो कभी मुझे चूमने लगती तो कभी मेरे चेहरे और हाथों को महसूस करके मुझे मेरे मौजूद होने का यकीन करती। अब्बा को दफनाने के बाद मेरी ही आमद का इंतज़ार हो रहा था। लोग अब्बा की मैयत को उठाने के लिए आ गए थे। मैं भी नाचार वहाँ से उठ गया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था जिस वक्त मैंने अपने बाप की मैयत को कंधा दिया था। इस वक्त मैं खुद को भी हद कमज़ोर महसूस कर रहा था। आज अब्बा चले गए थे तो मुझे इनकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ था। भले अब्बा कम कमाते थे, इनकी आमदनी इतनी नहीं थी, मगर इनका वजूद ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। अम्मा सारी ज़िंदगी पैसों की खातिर अब्बा से लड़ती आई थी और अब तो अब्बा ही नहीं रहे थे। कब्रिस्तान पहुंचकर मैंने अपने हाथों से अब्बा को कब्र में उतारा था। आज मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि जिन लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, इनके दिल पर क्या गुजरती है। अब्बा को मनोमट्टी तले दफना कर घर आया तो खाने की देगी घर आ चुकी थी। लोग खाना खा रहे थे और मैं सब लोगों को हैरत से देख रहा था। वो सब भूल चुके थे कि अभी किसी को दफना कर घर आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता घर से मेहमान रुखसत होने लगे थे और फिर रात होते होते मैं और अम्मा ही घर में बचे थे। अम्मा बिल्कुल खामोश थी। वो बस खाली खाली नज़रों से सबको देख रही थी तो कभी दुपट्टे में मुँह छुपाकर रोने लगती थी। अम्मा की ये हालत से मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। अम्मा की सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं खाना लेकर इनके पास गया तो मुझे देखकर वो दोबारा से रोने लगी। मुझे यूँ रोता देखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं तो अम्मा को सारी ज़िंदगी हर सुख देना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि अम्मा को इतना बड़ा सदमा मिल जाएगा। अब्बा ने अपनी पूरी ज़िंदगी सख्त मेहनत और मुशक्क़त में गुजारी थी और अब भी उन्होंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। जबकि मैं अब्बा को ये बात कह कर थक गया था कि जब मैं कमा रहा हूँ तो आपको कमाने की क्या ज़रूरत है। मगर अब्बा मुझसे कहते थे कि इस पर से मेरे हाथ पाँव चलते रहेंगे। अगर मैं घर में बैठ गया तो मुझे जंग लग जाएगा। इंतकाल से एक रोज़ कबल भी अदा की तबीयत बहुत ख़राब थी। अम्मा ने इन्हें काम पर जाने नहीं दिया, मगर अब्बा फिर भी काम पर चले गए थे और वहीं अब्बा का इंतकाल हो गया था। अब्बा यूँ अचानक मुझे छोड़कर चले जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा उठकर कुछ खा लें, आप सुबह से भूखी हैं, इस तरह तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मेरी बात सुनकर अम्मा ने सुर्ख नज़रों से मेरी जानब देखा और कहने लगीं कि जब तुम्हारे अब्बा ज़िंदा थे तो मैंने ज़िंदगी में इनकी कदर नहीं की थी, और अब वो चले गए हैं तो मुझे एहसास हो रहा है कि इनकी मौजूदगी हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी थी। ये कहकर अम्मा मज़ीद रोने लगी। मैंने खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखी और अम्मा के बराबर में बैठकर इनके बाजू पर हाथ फैलाकर इन्हें गले लगा लिया। मैं अगर सालों बाद अम्मा को देख रहा हूँ और वो यूँ रो रही है। मैंने ज़बरदस्ती अम्मा को खाना खिलाया। उन्होंने मुश्किल ही चंद लुक़मे लिए थे। इसके बाद उन्होंने खाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने भी ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया और अम्मा को दवाएं खिलाकर सोने के लिए लेटा दिया। बेशक आज की रात अम्मा और मेरे लिए बहुत ही भारी थी। अम्मा दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही थी जबकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं घर की छत पर आकर बैठ गया था। अब्बा की याद बुरी तरह से सता रही थी। मैं अब्बा के आखिरी वक्त पर इनके साथ नहीं था, जाने इस वक्त इन पर क्या गुजर रही थी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरे अब्बा रोज़ ही मुझसे फ़ोन पर ये सवाल करते थे कि घर जब लौट कर आओगे। मैं इन्हें तसल्ली देता था कि जल्द ही लौट आऊँगा। मैं इस तरह से लौटूंगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारी रात आंखों में कटी थी। अब्बा की याद एक पल भी मेरे जहन से महू नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब्बा मेरे आसपास हैं और मैं एक बार इन्हें गले से लगाना चाहता था, मगर अब ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। अब्बा जहाँ जा चुके थे वहाँ से लौटकर कोई भी नहीं आता था। मेरे दिल का बोझ और मलाल रात गुजरने के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। आज मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि परदेश में रहने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। मुझे एक माह बाद वापस लौटना था, मगर मैं अम्मा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था। पहले तो अब्बा जिंदा थे तो मैं बिल्कुल मुतमिन था, मगर अब अम्मा बिल्कुल ही तनहा और अकेली रह गई थी। अम्मा बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। हर वक्त मुझसे यही कहती थी कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे अब्बा से पैसों की खातिर लड़ती झगड़ती रही, और अब जब हमारे हालात अच्छे हो गए तो तुम्हारे अब्बा ही हमें छोड़कर चले गए। इस रोज़ अम्मा ने मुझसे पूछा कि तुम वापस कब जाओगे। मैंने अम्मा से नज़रें चुराते हुए इन्हें जवाब दिया कि 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। 1 माह बाद मुझे वापस जाना होगा, वरना वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मेरी बात सुनकर अम्मा चंद लम्हे खामोशी से मेरा चेहरा तकती रहीं और फिर कहने लगी कि तुम 1 माह बाद मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं इस घर में किसके आसरे पर रहूँगी। मैं तो बिल्कुल ही अकेली रह जाऊँगी। ये कहते हुए अम्मा के लहजे में जासियत थी, लेकिन मैं भी अपनी नौकरी के हाथों मजबूर था।
اگر میں واپس نہیں جاتا تو ایک اچھے مستقبل کا میرا خواب چکنا چور ہو جاتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کروں۔ ایک جانب نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا تو دوسری جانب اماں کو یوں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ایک روز اماں میرے کمرے میں آئیں اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ میں کافی دیر تک اماں کو دیکھتا رہا کہ جانے وہ کیا بات کرنے آئی ہیں، مگر جب خاموشی کا دورانیہ لمبا ہو گیا تو میں نے خود ہی اماں کو مخاطب کیا۔ اماں کسی گہری سوچ میں تھی، چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کچھ کہہ رہی ہو۔ میں نے گہری نظروں سے اماں کی جانب دیکھا۔ کل سے اماں بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے اماں کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان سے کہا کہ اماں اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ اماں میری بات سن کر اماں نے امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ اس وقت مجھے یہ بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر تمہارے ابا کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی رہ گئی ہوں۔ یوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے میں تمہاری شادی کر دوں تاکہ مجھے اس گھر میں اکیلا نہ رہنا پڑے اور تم بھی میری طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کام پر توجہ دو۔ میں نے ٹھنڈے دماغ سے اماں کی بات سنی۔ مجھے اماں کی بات بالکل معقول لگی۔ یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جانے سے پہلے شادی کر لوں گا۔ مگر اب بھی اماں کی پریشانی دور نہیں ہوئی تھی۔ اماں نے مجھ سے جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہاری شادی اس سے ہی کر دوں گی۔ میں نے مسکرا کر اماں کی جانب دیکھا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ میری شادی آپ اپنی مرضی سے کر دیں۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر اماں خاموش ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، مگر میں نہیں جانتی کہ تم اس سے شادی کرنے پر راضی ہوگے یا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو اس لڑکی سے شادی کرنے پر راضی ہونا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اماں کی اتنی لمبی تمہید کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ آپ کہہ سکتی ہیں۔ تو اماں نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم کرن سے شادی کر لو۔ کرن کا نام سن کر میں نے بے یقینی سے اماں کی جانب دیکھا۔ کرن میری خالہ کی بیٹی تھی اور چند ماہ پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ جب اس پر یہ قیامت ٹوٹی تھی۔ اماں ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ وہ کرن کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے آئیں، مگر جب انہوں نے اس بارے میں خالہ سے بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے اور خالہ کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ وہ کرن کی شادی کسی اونچے گھرانے میں کریں، اس لیے انہوں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ اور اب جب کرن بیوہ ہو گئی تھی تو اماں سب کچھ بھول بھال کر ایک بار پھر سے کرن کو اس گھر میں لانے کے لیے راضی تھی، اور یہ بات خالہ نے ہی اماں کے ذہن میں ڈالی ہوگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ان کی بیوہ بیٹی کا رشتہ بہت ہی مشکل سے ہوگا، اور اگر اس کی شادی ہو بھی گئی تو کوئی بڑی عمر کا آدمی ہی ملے گا اور کرن کو دوسروں کے بچے سنبھالنے ہوں گے۔ اسی وجہ سے خالہ نے اماں سے بات کی اور اماں نے فوراً ہی رشتے کے لیے راضی بھی ہو گئی تھی۔ اماں کی خوشی کی خاطر میں اس رشتے کے لیے راضی ہو گیا اور کرن سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ اماں بڑی رضامندی جان کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے پہلی بار اماں کو اس قدر خوش دیکھا تھا۔ اماں کی خوشی میں خوش تھا۔ اماں خوشی خوشی یہ بات خالہ کو بتانے کے لیے چلی گئی اور میں بھی سکون سے سونے کی تیاری کرنے لگا۔ یوں اسی ہفتے میرا نکاح سادگی سے کرن کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح سادگی سے کر کے میری خواہش میری ہی تھی، کیونکہ میں ابا کا انتقال ہوا تھا اور میں اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں منانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے نکاح نہایت ہی سادگی سے کر دیا گیا اور کرن بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ اماں کرن کو بہو بنا کر بہت خوش تھیں۔ اس عرصے میں نے گھر بھی بدل لیا اور نسبتاً ایک اچھے علاقے میں گھر لے لیا۔ یہ والا گھر ہمارے پرانے گھر سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ پرانے والے گھر میں محض 2 کمرے تھے اور ایک صحن تھا۔ سردی گرمی اماں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں نئے گھر میں شفٹ ہو کر میں نے سب سے پہلے انسان کے کمرے میں آرام کے لیے ہر چیز لگوائی تاکہ اماں کو کسی کی پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے سردیوں کے لیے ہیٹر کا بندوبست کر دیا تھا تو گرمیوں کے لیے اے سی کا بندوبست کر دیا تھا۔ اماں اپنے گھر کو چھوڑ کر اس گھر میں ہرگز بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اماں کو یہاں آنے کے لیے راضی کیا تھا۔ کرن بھی نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھی۔ کرن اماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اماں کی طرف سے بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ میری غیر موجودگی میں کرن اماں کا خیال رکھے گی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس 1 ماہ میں ابا کے جانے کا غم بہت حد تک کم ہو گیا تھا، مگر دل سے پوری طرح غم ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ تو وہ خسارہ تھا جس کا غم تمام عمر ہی رہنا تھا۔
मगर मेरे दिल में आया कि जो परेशानी थी वो किरण के आने से दूर हो गई थी। पहले तो मैं अम्मा की ख्वाहिश की वजह से किरण से शादी करने पर राज़ी हुआ था, मगर अब किरण ने अपने हुस्न सलूक की वजह से मेरे दिल में भी जगह बना ली थी। मैंने किरण को खुले दिल के साथ कबूल किया था। मैंने किरण और अम्मा के लिए इस घर में आसाइश का बंदोबस्त कर दिया ताकि मेरे जाने के बाद इन दोनों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब मुझे अम्मा के साथ साथ किरण का भी ध्यान रखना था। किरण मेरी सोच से बढ़कर अच्छी साबित हुई थी। अम्मा अब्बा के जाने के बाद बहुत चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। अम्मा अक्सर किरण पर गुस्सा हो जाया करती थी, तो मैं किरण को यही समझाता कि अम्मा बीमार रहती हैं, इसलिए वो इनकी किसी भी बात का बुरा ना माना, और किरण मुस्कुराकर खामोश हो जाया करती थी। वो मुझसे अम्मा की कोई भी शिकायत नहीं करती थी, इसी वजह से मैं भी इसकी तरफ से मुतमिन था। जो एक माह कैसे गुजरा कुछ पता ही न चला, और मेरे वापस जाने का दिन आ गया। सुबह ही से मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। अम्मा को जो छोड़कर जाने के ख्याल मुझे बुरी तरह परेशान कर रहा था, मगर आखिरकार मुझे काम पर वापस जाना ही था। जो मैं वापस अपने काम पर आ गया, घर में इस दौरान सब कुछ ठीक रहा था। मैं दोबारा लाजमी अम्मा और किरण की खैर खैरियत दराफ्त करता रहता। जिस मोहल्ले में मैंने अम्मा और किरण को घर लेकर दिया था, वहाँ हमारा कोई भी जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए मुझे मज़ीद परेशानी लाहक रहती थी। किरण मुझे हर बार तसल्ली देती कि जहाँ सब कुछ ठीक है और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। फिर मैं अम्मा से बात करके और इन्हें तसल्लियाँ देकर फ़ोन रख दिया करता था। अम्मा मुझसे बस यही सवाल करती कि तुम वापस कब आओगे, और इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था। अम्मा मुझसे कहती थी कि तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेली रह गई हूँ, और मैं इनसे यही कहता कि आप परेशान क्यों होती हैं, आपके पास किरण मौजूद है। काफ़ी अरसे तक मैं इसी जगह काम करता रहा। जब कंपनी वालों ने देखा कि मेरी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, तो इन लोगों ने मेरी तनख्वाह में इजाफा करने का फ़ैसला किया। मैं इस बार बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरी तनख्वाह डबल हो गई थी, और इस सब में मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन जब मुझे कंपनी की जानिब से पता चला कि वो मुझे किसी दूसरी जगह भेज रहे हैं जहां नेटवर्क का मसला है, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मगर फिर मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह घर वालों से बात हो ही जाया करेगी। यूँ मैं इस दूर दराज जगह पर आ गया, मगर इस बार मुझे कंपनी वालों ने जिस जगह भेजा वहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। मैंने घर में बात करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी कोई भी कोशिश कामयाब न हो सकी, और मैं अपने घर बात करने में नाकाम रहा। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं ऐसा शख्स नहीं था जो अपने घर वालों से काफ़र रह सके। मुझे अम्मा और किरण की फ़िक्र बुरी तरह सता रही थी। मुझे यहाँ 1 महीना रहकर काम करना था और फिर वहीं वापस चले जाना था जहाँ से मैं आया था। ये 1 महीना मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा था। जिस दिन मैं वापस इसी शहर जा रहा था, बहुत खुश था क्योंकि मैं सबसे पहले जाते ही मुझे अम्मा और किरण से बात करनी थी। इसीलिए तो मैं परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे अम्मा के सोच सोच कर फिक्र हो रही थी। मेरे बगैर उन्होंने 1 महीना कैसे गुजारा होगा। मैंने वापस जाते ही सबसे पहले अपने घर फ़ोन किया। किरण ने मेरा फ़ोन उठाया। वो बहुत परेशान थी कि मैंने इसे इतने दिन तक कोई राब्ता क्यों नहीं किया। किरण ने रोते हुए मुझे जब कहा कि अम्मा का इंतकाल हो गया है और मैयत दफनाई जा चुकी है, किरण के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये बात मैं सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। इस बात पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं इर्द गिर्द की परवाह किए बना बगैर ज़ारो-क़तार रोने लगा। दूसरी जानब किरण भी रो रही थी और कह रही थी कि मैंने आपको फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, मगर आपसे किसी भी सूरत रब्ता मुमकिन नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन अम्मा को दफना दिया। मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। मैं फ़ौरन ही वापस आना चाहता था, मगर किरण ने मुझसे कहा कि अब तो अम्मा की मैयत भी दफना दी गई है, आप वापस आकर क्या करेंगे। आप वहीं रहें ताकि आपकी नौकरी बरकरार रहे। मुझे किरण की बात भी सही लगी क्योंकि मैं इतनी जल्दी छुट्टी लेता तो ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देते, मगर मेरा यहाँ भी दिल नहीं लग रहा था। मैं एक बार अम्मा की कब्र पर जाना चाहता था और दिल खोल कर रोना चाहता था। इसीलिए मैं किरण को बताए बगैर अपने घर वापस आ गया, और वहीं हुआ जिस बात का डर था। इन लोगों ने मुझे बैठ जाने की वजह से नौकरी पर निकाल दिया था, मगर अब मुझे इस बात की परवाह नहीं थी क्योंकि मैं इतनी मेहनत अम्मा के लिए कर रहा था। इनको एक खूबसूरत ज़िंदगी देना मेरा ख्वाब था, मगर अब जब अम्मा ही नहीं रही तो जिन के लिए सब कुछ किया करता था, इसलिए मुझे नौकरी से निकाला गया, तो मैं इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपने घर वापस आ गया। किरण मुझे यूँ अचानक देखकर बौखला गई। इसके एक ही सांस पे कई सवाल कर डाले। इसको सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चलेगी। जब मैंने इसे बताया कि मैं नौकरी छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, तो इसने शौक से मेरी जानब देखा था, मगर अम्मा का गम जाने का गम इस कदर था कि मैं किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया था।
किरण ने मुझसे कहा कि अम्मा को अब्बा की कब्र के बराबर ही दफना दिया गया है। मैं जहाँ गया तो मालूम हुआ इस नाम की कोई कब्र नहीं। तो किरण ने मुझसे कहा कि इस अरसे में वो कब्र इन लोगों के किसी और को दे दी होगी। यूँ मेरे दिल का बोझ मज़ीद बढ़ गया कि मैं आखिरी बार अपनी माँ ही कब्र पर ना जा सका। चंद महीने मुझे जहाँ रहते हुए हो गए, मैं नॉर्मल ज़िंदगी की जानब लौट आया था। किरण मुझसे रोज़ कहती थी कि आप वापस चले जाएं। अब भी मैं इस बारे में सोचने लगा था। एक दिन मैं अपने डॉक्टर दोस्त के साथ इसके पागल खाने का विज़िट करने गया तो एक कोने में बैठी एक पागल औरत को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। इस औरत के करीब गया तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जिसके बारे में मेरी बीवी का कहना था कि वो मर चुकी है। मैं अम्मा के कदमों में गिर गया। अम्मा ने मुझे देखते ही पहचान लिया था और मेरे गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किरण ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मैं अम्मा को गले लगाए मुसलसल रो रहा था। मेरा दोस्त भी ये सब देखकर हैरान था। मैंने जब इसे बताया कि ये मेरी माँ है तो वो भी शशदर रह गया। मैं अम्मा को लेकर फ़ौरन ही घर में आ गया। मुझे अम्मा के साथ घर में दाखिल होते देखकर किरण अपनी जगह जम सी गई। वो बस फटी फटी नज़रों से अम्मा को देख रही थी। मैंने किरण को कहरालूत नज़रों से घूरा। किरण लम्हों में ही मेरी नज़रों का मफहूम समझ चुकी थी। मैंने अम्मा को इनके कमरे में जाकर बैठाया और बाहर आकर किरण से कहा कि ये सब क्या था। किरण सर झुकाई खड़ी थी। मैं समझ गया कि ये सब करने इसने जानबूझकर किया है। मैंने ठंडे लहजे में किरण से कहा कि तुम खुद इस घर से निकल जाओ, वरना मैं हाथ पकड़कर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर किरण मेरे पैरों में पड़ गई और मैं अपने किए की माफ़ी मांगने लगी और मुझसे कह रही थी कि अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, इन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इस वजह से मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हुई और मैं ज़ख्मी नज़रों से इसे घूर रहा था। मैं इस पर भरोसा करके अम्मा को छोड़ गया था। मैंने किरण को इसके घर वापस भेज दिया। किरण ने मेरा भरोसा तोड़ दिया था, इसलिए इसे माफ़ करना मेरे बस में नहीं था। मैंने अम्मा को यकीन दिलाया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आस्ता आस्ता अम्मा भी ठीक होने लगी और फिर एक दिन बिल्कुल ठीक हो गई। अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं किरण को घर वापस ले आऊँ, मगर मैं इस बात पर राज़ी नहीं था। लेकिन अम्मा ने अपनी कसम देकर मुझसे ये बात मनवा ली और मैं किरण को घर ले आया। मगर अम्मा के सारे काम मैं अपने हाथ से करता था। मैंने यहीं रहकर नौकरी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे दुनिया से ज़्यादा अपनी आखिरत की फ़िक्र थी। अब मैं अम्मा के मामले में किसी पर भी एतबार नहीं कर सकता था।